Good morning, students. This is Kekasha Bano, your accountancy teacher. I hope you're healthy and safe at your home and following the instructions of COVID-19 lockdown. In this video, we will continue the chapter Goodwill and its Valuation, Part D. After watching this video, you will be able to understand the meaning of capitalization method and the capitalization of goodwill by average profit method and capitalization of goodwill by super profit method. Now, let's start with capitalization method. In this method, we can calculate goodwill through two ways. Firstly, capitalization of average profit, and secondly, through capitalization of super profit. Now, first of all, we have to understand that why we keep and why we take this method as in capitalization method and what is the need of it. Now, think about it. In before this method, we have done a two type of method in capitalization of average profit and average profit method and super profit method. In both method, we had found the profit, that is the excess profit we generally earned in comparison to the other firms at the time of purchasing of firm. So that extra earning payment is considered as a goodwill and paid to the seller by the purchaser, same as it is in आप इसको ऐसे समझिए. लेट्स सपोज कि आज आपने एक बिज़नेस ख़रीदा है जिसकी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 रुपये है. ओके, और जिसके ऊपर आपको एक्चुअल इनकम हो रही है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये. ओके, दैट इज़ यू कैन प्रॉफिट. जब आपने इस बिज़नेस को परचेज़ किया तो आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन निकाला कि आपको फ्यूचर में 30% के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल रिटर्न मिलेगा. नॉर्मल रिटर्न मीन्स कि आप जितना भी आप उस टाइम पे कैपिटल लगाएंगे उसके ऊपर आपको 30% प्रॉफिट मिलने वाला है. तो अब ये आपको क्या करना है कि अगर आप 30 प्रॉफिट मिलेगा आपको फ्यूचर में, तो आपको 30% अकॉर्डिंग उस टाइम पे आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ती तो हम वो फाइंड आउट करेंगे. तो एक्सपेक्टेड कैपिटल, यू कैन से एक्सपेक्टेड कैपिटल आप फाइंड आउट करेंगे. अगर 2 रुपये के हिसाब से आज आपकी कैपिटल 10 रुपये है तो 1 रुपये के हिसाब से 10 डिवाइड बाई 2. अब 3 निकालना है तो 10 डिवाइड बाई 2 3, दैट इज़ योर 5 3 15, विच मीन्स कि 30% अकॉर्डिंग आपको एक्चुअली में कितना परसेंट निकालना पड़ता, 15 रुपीज़ आपको कैपिटल लगानी पड़ती. बट एक्चुअली में आज आप कितनी लगा रहे हो, 10 रुपीज़. तो 10 रुपीज़ आगे भी चलेगी. तो एक्सेस में आपको कितनी नहीं लगानी पड़ रही कैपिटल, एक्चुअली 5 रुपीज़. तो ये जो 5 रुपीज़ जो आपको एक्चुअली में कैपिटल नहीं लगानी पड़ रही है, वो आपका एडवांटेज है, वो आपका फ़ायदा है, जिसको आपको गुडविल के फॉर्म में पे करना पड़ेगा सेलर को. सो कंटिन्यू इन दिस. सो we will find out these two type of profit, that is your average profit and super profit. We will convert into its capitalization form. For this, let's start with capitalization of average profit. In capitalization of average profit, the value of goodwill is ascertained by deducting the actual capital employed, that is your net asset in the business, from the capitalized value of the average profit on the basis of normal rate of return, which means whatever सेम एज इट इज़ इन दिस यू हैव टू नीड अ एवरेज प्रॉफिट. आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज में कन्वर्ट करोगे, जैसा कि हमने कहा नॉर्मल रेट के अकॉर्डिंग आप उसने आपको कैपिटलाइज में कैपिटल में कन्वर्ट करना है. सेम एज इट इज़ जैसे कि हमने 30% को कन्वर्ट किया था कैपिटल में. नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, जो आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें से आपको जो आपकी एक्चुअल एम्प्लॉयड कैपिटल है, जो एक्चुअली में आप अपने कैपिटल लगा रहे हो फर्म में, वो आप लेस कर देंगे. सो जो एक्सेस अमाउंट में जो आपको एडवांटेज वो आपको हो रहा है, वही हमारी क्या होगी, गुडविल होगी. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटरली बाय दिस डेफिनेशन ऑल्सो. Under this method, first of all we calculate the average profits and then we assess the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is also called capitalized value of average profit. It is calculated as under, you can say the formula is capitalized value of the firm. आप कैसे find out करेंगे, this
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आपके रिसेंटली ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ नॉर्मल रेट्स। देन आप क्या करेंगे, उस कैपिटलाइज वैल्यू में से जो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप डिडक्ट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल असेट्स है, उसमें से अगर आपकी एग्जिस्टिंग कोई गुडविल है तो उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे और माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। And the formula we get goodwill is equal to capitalized value of average profit minus capital employed. You can understand by this example also. First we take an example and we take numerical as in. Firstly we have business earned average profit 1 lakh during the last few years and normal rate of return is 10%. आपको गुडविल फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दिस आपकी नेट असेट मतलब कि जो एक्चुअल आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 8,20,000। पहले आप क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कन्वर्ट किया एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज में, कैपिटल में, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 दैट इज़ योर 10 लाख। देन गुडविल फाइंड आउट करेंगे क्योंकि नेट असेट ऑलरेडी गिवन है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज माइनस 8,20,000 दैट इज़ योर 1,80,000। सो दैट इंक्रीजमेंट एंड दैट एक्सेस इज नोन एज योर गुडविल। नाउ कम टू द मेथड ऑफ नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर उसको कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपली एज दैट, जस्ट कन्वर्ट इनटू कैपिटलाइजेशन। जो भी इसमें हम क्या मानते हैं कि जो एक्चुअली में आपका एक्सेस, इसमें हम ऑलरेडी हम डिफरेंस निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन में। कैसे, इस सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते थे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता था वही आपका एक्सेस अर्निंग होती थी। उस एक्सेस अर्निंग को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है आपको डायरेक्टली, एंड दैट कैपिटल फॉर्म इज योर गुडविल। So for finding out this, you just follow these steps. You have to calculate that. Calculate capital employed of the firm, which is equal to total asset माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया है, टोटल असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देना है। अगर आपकी कोई फिक्टिशियस असेट या फिर गुडविल है तो वो आप पहले असेट्स में से, टोटल असेट्स में से लेस करेंगे और फिर उसमें से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी लेस करेंगे। सेकेंड स्टेप आपका है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 लाख रुपए आपकी कैपिटल लग रही है तो उसके ऊपर अगर 10% नॉर्मल रेट है तो उसका क्या बनेगा, आपका 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट 5 रिसेंट ईयर्स के। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का जो आपका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देन calculate super profit that is the difference between the actual profit and the normal profit. You can say average profit minus normal profit. Then whatever you get the super profit, convert into the capitalization, that is super profit multiply by 100 normal rate of return, which means super profit multiply by 100 divide by जितना normal rate of return है। We can understand by this example also. In other words, goodwill is the capitalized value of super profit. The amount of goodwill worked out by this method will be exactly the same as calculated by the capitalization average profit. आप जिस साइड से भी, जिस टाइप से भी आप कन्वर्ट करिए, फाइंड आउट करिए गुडविल की वैल्यू, आइदर फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड आइदर विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपका दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे कि आप वही एग्जांपल को ले लीजिए, तो उसमें आपका जो नॉर्मल आपने फाइंड आउट किया, सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया, ये 1 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट था, एक्चुअल कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 था, डिफरेंस आपका 18,000 आया। सुपर प्रॉफिट को आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटलाइज में और आपकी वैल्यू आ गई 1,80,000, जो कि सेम थी हमने निकाली थी एवरेज प्रॉफिट के थ्रू।
So here I'm completing this chapter with these last two topics in the chapter of goodwill and its valuation. So let's sum up this. Whatever we have learned in the chapter of goodwill, we have studied about the meaning of goodwill, we have studied about the feature of goodwill, we have studied about the factors affecting goodwills, we have studied about the kind of goodwill and the methods of goodwill. In the methods of goodwill we have discussed average profit method, super profit method and capitalization method. Under the method of capitalization, we also have learned about two another method, that is capitalization of average profit and capitalization of super profit. In both type of profit method, the answer will be the same, which means the value of goodwill will be the same. In next class, we will start a new chapter, that's admission of a partner, your PSR, which means a change in profit sharing ratio. For till then, if you have any query, you can ask during session without any hesitation, and have a good day.